السلام علیکم. او بخیر مینا کے ساتھ 2 ہفتے بعد حاضر ہوں جی. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. اور انتظار کیا آپ لوگوں نے؟ مس کیا ہمیں؟ کیا تھا؟ سچ سچ بتائیں, جھوٹ نہیں بولنا, کوئی مسکا شسکا نہیں لگانے. کیا تھا؟ اور یہ ہوئی نا بات. تھینک یو سو مچ. میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کیا اور میں نے کہا کب یہ ہماری, چونکہ وہ بھی لازمی تھا کیونکہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس پہ ہم اس ٹائپ کے پروگرامز نہیں کر سکتے, تو اسی لیے آپ لوگوں سے تھوڑی سی جدائی ہمیں اختیار کرنی پڑی تھی. لیکن میں نے بہت مس کیا اور میں اس انتظار میں تھی کہ کب ہم واپس آئیں گے اور آپ لوگوں سے ملیں گے. ریکارڈڈ شو اچھا ہوتا ہے لیکن جو لائیو کا مزہ ہوتا ہے واو, اس کا تو جواب ہی نہیں ہے جی. تو اسی لیے اور آج کا شو جیسے کہ لاسٹ والا شو بھی تھوڑا سا فارمیٹ چینج تھا اور آج والا تو بالکل ہی فارمیٹ چینج ہے. اور آج کے ایک ہماری چیف گیسٹ تو آئے گی لیکن جو ہمارے روٹین کے مہمان ہیں وہ حاضر ہے جی, اور وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ. اتنے ماڈرن قسم کے, اتنے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ مہمان, اتنے سگڑ قسم کی خواتین اور اتنے اعلیٰ پائے کے اعلیٰ درجے کے شاعر ماشاءاللہ کہ وہ اردو کے وہ کیا کہتے ہیں اس سے تشدید, پتہ نہیں کون سی والا لفظ ہے, فتین والی اردو, یہ مطلب اردو کو کلیئر کرنے اور اس پہ جو ہے انویسٹیگیشن کرنے, اس کی تاریخ کو معلوم کرنے یہ گئے تھے, آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ پورا جو ہے تو ریسرچ کر کے آئے اردو پہ. اور بہت ہی زبردست قسم کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری کے بارے میں نے سنا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک دفعہ ان کو سنیں گے تو آپ ان کو بار بار سنیں گے کیونکہ بہت کلاس کی شاعری کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرے شو میں یہ مہمان آئے ہوئے اور آج مجھے ان کے اعلیٰ درجے کی شاعری اور وہ خاص وہ جو ہوتے ہیں نا بالکل ہی وہ خوبصورت اردو والی شاعری میں ان سے سنوں گی تو مجھے بہت مزہ آئے گا. اور جو اسپیشلی جو ہماری سگڑ خاتون ہے جو ماشاءاللہ گھر کو سنبھالتی ہے, جو شعر داری کو سمجھتی ہے کہ شہروں میں لوگ گھروں کو کیسے سنبھالتے ہیں, خاندان کو کیسے سنبھالتے ہیں, گھر گرستی کو کس طرح سنبھالتے ہیں, اس ٹائپ کی خواتین بھی ہے. اور ایک ماڈرن ترین خاتون بھی ہے جو کہتی ہے کہ جی ماڈرنزم تو ان کے اوپر ختم ہے. تو سب سے پہلے ہم مس اینی کو ویلکم کرتے ہیں. ہائے اینی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, آپ بھی بہت اچھی لگ رہی. ہاں تھینک یو سو مچ. تو میں نے کہا آپ جیسے لوگ آ رہے تو تھوڑا اپنے اوپر بھی خواری کرنی پڑتی ہے نا. اچھی بات ہے. ہاں, اور ماشاءاللہ ہمارے شاعر صاحب ماشاءاللہ ان کے تو بات ہی کچھ اور ہے. اتنے ماشاءاللہ ڈیسنٹ لگ رہے, اتنے سوبر لگ رہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی شاعری بھی بہت ہی سوبر اور اتنی خوبصورت شاعری ہوگی کہ واو. تو شاعری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ شکر اللہ کا کرم. بہت بہت نوازش, شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے شو میں. آپ نے اتنی پیاری باتیں کی, اسی دوران مجھے آمد شروع ہو گئی بعد میں اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو پوچھوں آپ سے کہ آپ فرمائش کریں گی یا میں خود پیش کروں؟ نہیں, بعد میں آپ سے فرمائش کروں گی. کرتی ہیں کہانیاں, جی کرتی ہیں کہانیاں کچھ کچھ سرگوشیاں. واہ 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 واہ. کرتی ہیں کہانیاں کچھ کچھ سرگوشیاں, مجھ سے کہتی خاموشیاں. واہ 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 واہ. کہاں سے آ رہی ہے مینڈک کی آواز؟ ایکسکیوز می. کرتی ہیں کہانیاں کچھ کچھ سرگوشیاں, مجھ سے کہتی خاموشیاں. کہاں سے آ رہی ہے مینڈک کی آواز؟ بادام توڑا تو کڑوا نکلا, جیسے بادام کے چھلکے میں بھری ہو میری داستاں. اس شعر پہ غور کریں, بہت گہرا شعر. کچھ رہ ہی نہیں گیا. بادام توڑا تو کڑوا نکلا, جیسے بادام کے چھلکے میں بھری ہو میری داستاں. ہاتھی نے دیا ایک بڑا انڈا جس میں سے نکلی چھپکلی. ہاتھی نے دیا بڑا انڈا جس میں سے نکلی ایک چھپکلی جو ہاتھی کو گالیاں دے رہی تھی. ہم ادھر روک دیتے ہیں میرے خیال سے. کچھ چھپکلی ہاتھی کو گالیاں دے رہی تھی, کیوں چھینی مجھ سے میری تنہائی. یہ مکالمہ دیکھیں چھپکلی اور ہاتھی کے درمیان ہے. ہاں وہ جو ابھی انڈے سے نکلی. یہ کیوں چھینی مجھ سے میری تنہائی. یہ چھپکلی ہاتھی کو ایڈریس کر رہی ہے اس وقت. کس نے بلایا؟ نہیں اگر تم کو میری ضرورت. یہ نہیں ہے ضرورت, نہیں ہے ضرورت. اس میں بہت گہرائی ہے. جی جی پلیز. نہیں تم کو اگر میری ضرورت, ڈال دو مجھے واپس انڈے میں. ابے بریک. آپ ادھر سے سٹاپ لے لیں. ڈال دو مجھے واپس انڈے میں, دل کے دروازے کھول کے رکھو. اس زمین پر انسان نہیں مصر کی ممیاں پھرتی ہیں.
ये हमको मम्मी कह रहा है। शहरयार साहब मैंने कुछ सुना कुछ और था और निकला कुछ और। ये अंडे में से निकले हैं। करती हैं कहानियाँ कुछ 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 सरगोशियाँ तक ठीक है माशाल्लाह, बाद में सुनेंगे। शायद आपने कुछ गलत किसी और का शायद सफ़ा पलटा लिया, शायद गलत हो गया। एक और हमारी बहुत सुगड़ खातून है जी, जो टिपिकल शहरी खातून है जी, जो हर हिनको के बगैर उसका कोई लफ्ज़ है नहीं, कहते उर्दू क्या तुम लोग उर्दू को बेचते हो, हिनको में बात किया करो। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन अल्लाह खैर करे जी। रुखसाना मैडम उर्फ रुखसार साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वडी रहे जीती रहे खुश रहे आबाद रहे। वडी रहे थे और कितने वडिया हो जावे। मैंने मोटी दाते नहीं किया, एक्सक्यूज मी। मैंने तो क्या वडी रहे। अच्छा वडी हो जावे। वडी मतलब वडी का मतलब तुसी नहीं पछाड़ दे। नहीं जी, वडी मतलब कि बड़ी हो जाओ। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितनी बड़ी होंगी। खातून की बात, जहरी गाले घरेलू उम्र खातून की बात की तो सर, इनकी शान नहीं, में नहीं, आप जरा कसीदा कहना चाहता हूँ। नहीं, कसीदे हम घर से घर की छत पर घूम अबे रही बस थी, आराम ते हो जा, आराम आपकी ते ब्रेक। तारीफ में। घर की छत पर घूम रही थी कौन? गहरे स्याह बादलों को देखकर। वाह वाह, ए उन सोना ए उन सही किया, ये सही किया, बोला घर के की बोला छत पर घूम रही थी गहरे स्याह बादलों को देखकर। वाह जाने उसके दिल में क्या आया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। जाने उसके दिल में क्या आया, हाँ नीचे आकर दे गई अंडा मेरी जाए। प्यारी मुर्गी। एक्सक्यूज कहते मुझे क्या पे बोलने बस चुप बस बस मजा नहीं आपकी बहुत मेहरबानी। मेरे ख्याल में कुछ अगर समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे आप हैं। सब अगर अबे बस इंसान है ना, ज्यादा नखरे ना मार। तो शगुफ्ता और शाइस्ता अंदाज की डिमांड ये है कि आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। मेरी बात आपकी बात मुकम्मल करने देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? सोचा कुछ था, समझा कुछ था, दिखाया कुछ और निकला कुछ। मैं खुद तो में इस तरह ब्रेक से लेते हैं, जज्ब हो वापस गया आते हैं। हूँ। प्लीज टेक अ ब्रेक। वेलकम एक बार फिर, खुशामदीद जी। ओ खैर मीना के साथ, और आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छे मेहमान हैं। स्पेशली अगर मैं शायर साहब का जिक्र करूं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शायर हैं, और जो बहुत ही अच्छे शायर हैं। इनकी आपको इनकी शायरी की समझ आती है? नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छे हैं। एक दफा शुरू हो जावे ते बात चुप ही नहीं कर क्या मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है बोल क्या रहे, कब शुरू और किया मुन्नू भी कब कोई- खत्म किया। नहीं बस आपको चुप तो करना पता नहीं, तू नहीं। भी शुरू हो जानी है तो चुप शुरू है। सबसे आप क्या बोल अहम रही हैं? जो जरा तो उर्दू नहीं में समझ बताएं, रहे। मुझे नहीं समझ आ रही क्या आप मुनूर बोल- तू आंदी नहीं और मुझे जो आप पिटर 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 करके नहीं समझ आ रही। अनि तू केरे कर दी 9 बार से ही पता मनो। आप प्लीज मुझसे बात मत करें। कोई नहीं, वो असल चुप कर में जा। मसला ये है कि चुप कर, उनको तू भी हिंदी शुरू को हो समझ जाना है, नहीं जी, आती और आप उर्दू को पसंद नहीं पता नहीं करती। क्या गालियां देती रह रही है मुझे। गालियां आए नहीं, गाली किथों पे देने हिंदी पई को कुड़ी तनु इनको दी समझ आंदी नहीं की। नहीं, ये कौन सी जुबान है? ए मैंने इनको जुबान दी तनु समझ नहीं नहीं आंदी। नहीं, हिंद को बड़ी मीठी जुबान है। वही आप ना। असल में आप कहाँ कौन से मुल्क में पैदा हुई है? मैं जी पाकिस्तान में ही पैदा हुई। अच्छा अच्छा। पर मैं ट्रैवल करती रहती हूँ ना, तो उसकी वजह से और अनि इस जुबान को तो मैं के पे पहली बार बोलने सुन पई रही हूँ। वडियाइयां अच्छा, ना इनकी साटो जुबान- इनकी जुबान तो वडियाइयां मैं ना पहली बार साटो। सुन रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या बोली जा रही है, मुनु क्या तेरी कह समझ रही नहीं है। आंदी पे कि अच्छा, तू के बोल एक्सक्यूज मी यू लेडीज, प्लीज जरा खामोश हो जाए। तुसी जरा मेहरबानी करके जरा कोई नहीं, बाल जरा अपने सही करो दूर पास से। वैसे अच्छा इनकी जी शाइस्ता गुफ्तगू सुन के एक आमद हुई है। सर, आपसे मैं फरमाइश करूंगी। चल बस फिर। लाला इकबाल दी जुआई चुप मैं कर जा। खुद मैं इस तरह से जज्ब हो गया हूँ, शुरू हो गया है जी। चल मैं खुद में इस तरह से जज्ब हो गया हूँ जैसे बगलों में मकड़ी के जाले और चमगादड़ के अंडे। एक ही विजय शेर है मकड़ी तो जाला किथों आ गया। my अबे God. लाले किथों आ गया। मैं खुद my में इस God. तरह से जज्ब हो गया हूँ जैसे बगलों में बगलों मकड़ी के में? जाले और चमगादड़ के अंडे। ए तू के पे बोला जाना है, कुछ समझ ही नहीं आंदी, ना सिरों से ना पैरों से। ये आप लोगों ने जो तारीफ की मेरी, जी जी बिल्कुल। उन्हें की मैं इससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप लोग शेर व शायरी का काफ़ी ज़ौक़ रखते हैं। जी मैं बिल्कुल आपके बारे में जो मैंने सोचा, जो मुझे कहा गया कि आप माशाल्लाह उर्दू पे रिसर्च के लिए आप बाहर गए, इतना आपने स्ट्रगल किया। इस दिल ने देखे हैं, जी शुरू हो गया इस बात। दिल ने देखे हैं एक अजीब किस्म के रात और दिन। वाह वाह, ये है बात। आप समझ रही हैं और मैं किस आगे तरफ जा रहा आगे हूँ। बेरा घरों बिल्कुल, को इस दिल ने आगे देखे। बेरा घरों को सुन दे मैं जाओ। आपको बताऊं, आप शुरू इस दे बड़े शेर अच्छे पे- बोल उस। शेर पे मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगे।
अच्छा प्लीज तो सुन तो लूं ना मैं। चलो इस शुरू से दिल बड़े ने अच्छे। देखे हैं अजीब किस्म के रातों दिन, रातों दिन, वाह। ना हूँ मैं सेफ्टी ना हूँ मैं पिन। वाह ए वेखाई आज पैर इस पानंदा दिल ने देखे हैं अजीब किस्म के रातों दिन, ना हूँ मैं सेफ्टी ना हूँ मैं पिन। रिमांड पर लेकर जाए मुझे पुलिस, रिमांड पर लेकर जाए मुझे पुलिस, अनिके डिस्को बनी है डिमांड पर लेकर जाए मुझको हर पुलिस। हाँ हाँ, हर पुलिस, हर पुलिस की बात कर। अच्छा हूं पुलिस भी विश्कार आ गया अच्छा, चोर ऐसा है कि है नहीं कि शहरियार साहब, आपसे मैं फरमाइश करूंगी, फिर जो आपकी नई नई आमद है आपकी दीवान में से, आप मुझे वो सुनाएंगी। ये तो मेरे ख्याल से आपने और शायरों की शेर व शायरी उठा के आप मुझे सुना रहे हैं ना, आपकी अपनी शायरी जो होगी वो मैं सुनूंगी। लेकिन मैं मिस एनी से पूछूं ज़रा कि मिस एनी जो है, मिस एनी आपकी स्टडी आप क्या कर चुकी है, किस में मास्टर कर चुकी है आप? जी मैंने डेफिनेटली इंग्लिश में किया होगा। बिल्कुल जी, मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है। मास्टर टॉपर थी मैं अपनी यूनिवर्सिटी की। अच्छा, टॉपर्स थी या यहाँ पे साट दिया आप प्लीज चुप करेंगी, बीच में मत बोलिए। तूने किसी शायद ही समझ आंदी नहीं कि तू टॉप क्यों और बोलने टॉप पई है। चलती है वो इस तरह। नहीं नहीं सर, अभी छोड़, अभी एक सेकंड के लिए मैं जरा इनसे बात करूं, फिर मैं जेलस सुनती हूं। पीपल बात करने दीजिएगा। दो अनि तूने निके एजुकेटेड वाडी दी लोगों के तमीज बीच कोई में नहीं मत। तू क्या कर दी नो बात से रुखसाना बता जी, मुझे। कोई नहीं, लाइव बैठे हुए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई इनसे अच्छा एनी तो जी, माशाल्लाह जी, आप कोई। इधर ही रहती हो, पेशावर में जी, रहती हो, जी। तो इतनी नखरे नु मॉडर्निज्म देख के आप किससे मुतासिर हुई हो? मैं अपने आप से बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा, अपनी फेवरेट है आप? बिल्कुल जी, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा मुतासिर अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हो, Yeah, क्योंकि yes, आप इंग्लिश आपको बहुत पसंद है। यस यस आई रियली लाइक इंग्लिश। यू रियली लाइक इंग्लिश। अच्छा के पे अच्छा, बोलनी है। माशाल्लाह। तो ना सिर उससे ना पैर, उसको समझ ही नहीं आंदी के पे बोल दी पई है। यू प्लीज जस्ट मुंह बंद कर लें अपना आप। ओहो बांदी बांधे नखरिया ना मार। अच्छा, मैं जरा उनसे भी पूछ लूं, खैर जी, जी, झगड़ा नहीं शुरू करना। है, शुरू है, रुखसाना जी आप बताएं, इस आतिश फिशां को फटने दो। अब इनु बोलने दे ते मैं बोल साना इनु चुप कराओ। फटने दे। नहीं नहीं, वो आतिश, अनिता नु किने किया कि तू बोलनी फटने दे ते ना दे ते ठिपो अरे मेरी गल सुनो जी, तुसी जरा आराम नाल। शायर साहब आपसे मैं सुनूंगी, आपके टाइम पे मैं आपसे सुनूंगी। टाइम अभी है मैं भी जरा ना। इनसे पूछूं, शहर की शहरदारी, शहर की खवातीन घर गृहस्थी किस तरह संभालती हैं, और ये मीठी जुबान हिनको, वाह वाह जाहिल होती हैं बिल्कुल। कोई नहीं जाहिल कोई तेरी नहीं। थी कोई काटा है जाहिल तू वडे निके दी कोई तमीज नहीं गी Oh my ते तू कहनी God. पई है मनु जाहिल Oh my तू God. मेरी नौ बार दी देख मैं तेरे थे पांडे ना तोंदी नहीं, कादा नहीं, कम ना करांदी तनु मैं कंट्रोल रख दी मेरी शुक्र बात- कर तू मेरी नौ नहीं गी है अरे छड़ दे, वो समझ मेरे भी कार नहीं दी है। नौ अनु बुलावी ना तनु पता चल जसिया अस्तगफिरुल्लाह। मुझे जिस तरह हौसला लोग दे। रख दें। आप बताएं ना, शहर की शहरदारी कैसी होती है? बहुत अच्छा बड़ा मजेदार बड़ा जबरदस्त सिद्धू है ते दूसरे नु देख इंग्लैंड दी विश्कार मेरे वास्ते अंग्रेज बाड़ के आई है ए पिशोर दी कुड़ी है ते नखरिया नु देख उस पड़ी है पे साथ दी पई बात की है आपने। किसी नु जी, जी, समझ जी। ही नहीं आनी चुप कर शेर दी ना ठिपोर चुप कर जा मुनु भी बोलने दे शेर दी ए भी देखिए बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है दुए नु मौका नहीं देना है तेरा दुआ कम नहीं गा शहर की बात की। हाँ जी, शहर पे कुछ सुन हाँ, लेते चल हैं। ठीक है बात बोल बोल शहर बोल। पे कुछ सुन हाँ, लेते हैं। शेर जी, बाती जी, बोल। इरशाद, उन्हें इरशाद। मेरा दिमाग खराब कर छोड़ा मुनु कोई समझ ही नहीं आई चल चल बोल खैर खैर, तुझसे पानी चल पियो बोल। जरा जरा, दिमाग में ठंडा हाँ, ये कर। गल सही की हमारी पिया खुशकिस्मती है कि शहर से आज मेहमान आपने बुलाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जंगल की वहशत खा अबे जाएगी के पे मुझको। बोलना पिया वे ना मजा ते ना ख्वान ते जंगल ना ते टिप्पू चुप कर जाए पे के बोलना पिया कि तू की गला करना पिया वे तनु में जंगल लागने तनु में जंगली लागने तनु में के लागनी है आप उनकी तरफ देखिए, मुनु कभी- वे के कभी पे गला आतिश करना पिया वे फिशा, कि कभी नो कि जंगल। मुलाया वे एक सेकंड कोई मजा ही नहीं गा चुप कर नहीं नहीं, जो शायर होता है ना, वो जो माशरा होता है उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो हर एक चीज के ऊपर वो शेर व शायरी कर रहे होते हैं, ऐसे है ना बिल्कुल। जी? इन्होंने जो शहर की रौनकों की बात की, तो मैं दोनों रुख दिखाना चाहता जी हूँ। प्लीज क्या वे की वजह दिखाना वे तू ते जंगल एक मंगल पे शहर लगा का रुख है, जी, एक वहशत का रुख। रुखसार जरा सुन ले, मैं भी ठीक शायद है। अच्छा कोई शेर चल निकले। सही है ठीक जंगल की वहशत खा जाएगी मुझको, हाँ वाह वाह ले जाओ सारे बंदर उठा के यहाँ से। आखिर देशकारी कुछ ना कुछ बोल दंदई ना खनते ना मजा ये अपने नु ना थका मुझे समझ नहीं आ रही कि अरे मैंने तू इनके चुप बारे कर। में इतना कुछ सुना था, इतना कुछ। चुप कर आप जा। बाहर कौन से मुल्क गए थे रिसर्च करने? मैं उर्दू यूरोप में उर्दू की तशहीर के लिए गया। उर्दू की? किने अच्छा, तुझे एक भेजा? कॉल मैं ले लेती हूँ। तू किने पे हो रहा है, एक बता। कॉल ले लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हो और कहाँ से? मैं शाहद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे आप? जी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है।
थैंक यू सो मच. मेरे जो इतने प्यारे से मेहमान हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह, वो जो खैबर वाली है नहीं, वो दूसरे वाली साइड में बैठी हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रही है. हाँ, और दूसरा बंदा बहुत खामोश बैठा है, क्यों? बंदा जो है वो अपने आप को मिर्ज़ा गालिब समझ रहे हैं और शेर व शायरी अभी तक तो उन्होंने अपनी आमद वाली नहीं सुनाई. मुझे सारी मशहूर शेर व शायरी की शायरी खास कॉल की है तो मैं इनके नाम एक शेर करना चाहता हूँ. अच्छा, इनसे मैं ज़रा एक बात कर लूँ. आपने दुबई से कॉल की, आप दुबई में क्या करते हैं? उधर मैं जॉब करता हूँ अरब लोगों के साथ. अच्छा, जॉब करते हैं. और K2 टीवी को कितने टाइम से देखते हैं? यार बहुत टाइम से देखते हैं. आपका शो है, वो जिंदगी है, और अब्बास भाई का है. मतलब ये कि सब आप, देखते हैं. अच्छा जी. और ये आज का शो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? क्या? आज का शो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? ओ पखैर. नहीं, पहले देखा है लेकिन ऐसा तरतीब मालूम नहीं था, तरतीब से नहीं देखा है. अच्छा, बस आज देखे, आज फुल शो देखे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के साइड भी है, बीच में मेहमान भी आएंगे मजीद. तो जी, आपको ये कुछ शेर सुनाना चाहते हैं? जी सुने. इनके नाम से इतनी दूर से इन्होंने हमें कॉल की दुबई से. मैं इनके नाम एक शेर करना चाहता जी जी, इरशाद सुनिए. हूँ. आपके लिए एक शेर है मेहमान भाई. क्या चाहते हो मुझसे बेवफा, क्या चाहते हो मुझसे बेवफा, फोन करते हुए टीवी की आवाज आहिस्ता कर दो. आवाज ऐसा है. वो बस ये ऐसी ही शेर व शायरी होती है. दूसरी तरफ फोन की बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने हमारा हौसला अफजाई किया. बहुत बहुत शुक्रिया जी. अच्छा जी, तो बंदा जरा चुन के शेर व शायरी कर लेते हैं. एक कॉलर मैंने मौके की मुनासबत से शेर कहा. अच्छा अच्छा, ये आपको आमद हो जाती है? उसी टाइम जैसे इन्होंने हेलो किया, अच्छा, उधर से पीछे से आवाज आई मुझे. वाह, 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 दरुदकार वाह. छोड़े क्या माँ जबरदस्त शुरू आमद. आपकी अपनी शायरी है? ये सब मैं खुद शेर, ये दौरान सफर जब तन्हा होता हूँ, जी जी. तेरी तन्हाई मुझको मार डालेगी, जुनैद रहमान वल्द अरशद खान. वाह वाह, ये पक्के बोल है. ये ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. ये आप, अच्छा, ओह माय गॉड. अच्छा, ये मिस्रा भी जब यूरोप से देख जरा वापसी नखरियां पे नो. आपको याद है एयरपोर्ट पे आपकी मुझे कॉल आई कि याद आ रही हो. मैं मिस्र के एयरपोर्ट से आ रही थी. नहीं, जब मैं यूरोप से अच्छा, आप जब हाँ, शो के लिए आपको कॉल शो की के थी. लिए, उस वक्त आपने जब मुझे कॉल की जी, जी. तो आपकी आवाज, चेहरा तो था नहीं उस टाइम, हाँ बिल्कुल आवाज रवां दवां थी. बिल्कुल बिल्कुल. सिग्नलों के तारों पे, जी बिल्कुल. सिग्नल एक पुल था हाँ जी बिल्कुल. हमारे आपके बीच में. बिल्कुल बिल्कुल. क्या चाहती हो मुझसे जुनैद रहमान वल्द अरशद खान. डरा ये छोड़े मिसरा उस वक्त मेरे खुद ज़हन मारी में आया. डरा छोड़े तो उन्होंने. राशिद रहमान का क्या ये था? तखल्लुस है मेरा, जुनैद रहमान वल्द अरशद खान. अच्छा अच्छा, आपका तखल्लुस है. ओके ओके ओके. तो ये मिसरा उस टाइम मेरे जहन में आया, मैंने सोचा आपकी नजर पेश करूं. ओह क्या बात है जी. बहुत आप बहुत कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको कॉल करके गलती कर दी? वो तो गलतियां तो होती रहती हैं जिंदगी उन्हें में. गलती नहीं की थी, इन्हें गलती एक की थी. कॉल में ले लेती हूँ. गलती कर बैठे हो जाने तमन्ना, समझ जानती नहीं है वड़ियां. गलती कर बैठे हो जाने तमन्ना. आज चुप हेलो, कर जा. अस्सलाम वालेकुम. देख हेलो, तेरे हाथों नाच गए. कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम. नाच गए वो नहीं थी आवाज सुन के. अच्छा जी, आई एम सॉरी जी. इन्होंने गलती कहा, गलती लफ्ज. देखें, शायर वो शायर है जो अल्फाज से शायरी करे. हाँ बिल्कुल. हाँ हाँ तो एक शेर आया जहन में अभी. गलती कर बैठे हो जाने तमन्ना, हाँ. गलती कर बैठे हो जाने तमन्ना, तमन्ना खूब जमेगी जब आज अंडे के कोफ्ते खिला दो तो. गलती कर बैठे हो जाने तमन्ना, जो इसको बुला बैठे हो. तनु भी बुला के ते सबसे बड़ी गलती काट ज़ौक़ छोड़ी. ये भी रखती हैं ज़ौक़ वैसे. बिल्कुल आपसे रखती तो है, अच्छा रख दोनों नु बुला के सबसे बड़ी मेरी गलती बात काट छोड़ी. सुने, सुनो देख बात इंग्लिश सुने, में मार भी क्या पई, बात अंग्रेजी की बोल भी उन्होंने. पई है. ज़ौक़ और इन्हें आपके लिए देख अर्ज़ है, जरा, आपके लिए. ये भी देख. ज़ौक़ रखती हैं आप भी वैसे. कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रही हैं आजकल? आपको क्यों बताऊं, आप कौन मुझे है जी? कार्ड लोड करवाना है. मेरी बात सुने. आप भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शेर व शायरी करती. शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन एंड में आके आपको कोफ्ते शायद के अंडे अंडे बहुत ते पता पसंद नहीं होंगे. क्या पसंद हो. आपके खाने में आपकी फेवरेट डिश जो होती होगी वो अंडों से. Actually ना मैं कुछ कहना चाहती या हूँ. या ये प्लीज. शेर व शायरी रूह की खुराक है. यू प्लीज आप चुप करके बैठ जाइए. मेरी बात, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलिएगा प्लीज. एक्चुअली मीना, पता है क्या होता है, जब ये कहीं जाते हैं, ये अपनी शायरी ये वाली करते हैं ना, तो इनको अंडे पड़ते हैं. उसके बाद इन्होंने अंडों पर काम करना शुरू कर दिया. अंडे, चिपगादड़, छपकली, बस इसी के बारे में ये बात कर करके ऐसे हो गए. चिपकली शुरू हुई है, उसी भी दोगनी आवाज दे. जरा चुप कर जा. अंडे जाहिल. मैं कॉल ले लेती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम बेटी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? असगर साहब अटक से। जी बेटा, हाजी मोहम्मद असगर अटक से। क्या हाल है? पहली दफा कॉल कर रहा हूँ टीवी K2 टीवी पर आज। आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे? इन प्यारे प्यारे खूबसूरत मेहमान जो हैं हमारे, इनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, और आपके शो को थैंक यू। अल्लाह ताला इसे कामयाबी से चलाते रहे। बड़ा प्यारा शो है, हंसी मजाक में चल रहा है बात। मैं मुअज़्ज़िज़ शायर के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी आप जी जी इरशाद। आ गई है फरमाइश। बुलबुलों के दरमियान कौवा आके बैठ गया। बुलबुलों के दरमियान हिलन तेरे नाल बार गई। दरमियान कौवा आके बैठ गया, न जाने का बंडा दे के उड़ जाए। लैंडा, उन्हें लैंडा याद आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, याद आ गया। क्या बात है, अंडा याद आ क्या गया। बात है। मुकर्रर क्यों मेरी बेटी, तेनू कुछ पता लग गया मैं कोई शेर के आई? बहुत गहरा शेर कहा है आपने। खाई से बात कर रहे हैं? अटक 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 से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आज ही दिल खुश कर छोड़ी, बड़े अंडे मैं याद कब कर से- रहा है। मैं जब ये शेर व शायरी तो मैं कहती हूँ अभी ये कुछ अच्छा इरशाद फरमाएंगे, वो एंड में जाके अंडों पे ही रह जाते हैं। कितने अंडे थे, कितने खिदमत में कोफ्ते। इन्हें चुप कर, आज शेर छोड़ा पेश सन करना जाते। चाहता जी सर जी, आप मैंने नहीं वो कुछ कहा, जो कुछ भी कहा। मैं आपके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ। जी जी सुनो। ये हमारे गूंज रही है तेरी आवाज कुछ इस तरह, हूं आगे जा देख बेड़ा घरों को। गूंज रही है तेरी आवाज कुछ इस तरह, आगे जाके बेड़ा घरों को। क्या कॉन्फ्रेंस रूम से बात कर रहे हो? अंडे उनके निंगे। मेरी अंडे सरकार, अंडे आप निंगे। बोलते जाए हम सुनते जाएंगे। माशाल्लाह जी। और आज आप चाहे सुने अंडे दो चाहे बच्चे दो, ये आपकी मर्जी है, हम तो खिलाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। और यकीन माने जब आप जैसे लोग हमें कॉल करते हैं तो पता लगता है कि कच्चा हाँ तेरा भी जो किया। मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए, आपको सारी entertain शेर करते दियां हैं आप लोगों को, तारीफां, it means यानी कि हम तेरी अपने इस अंग्रेज कोशिश तेरी में जिंदगी कामयाब भी होते हैं। अरे तुम लोग जरा चुप करो। हमने आपके Hello? देखने वालों को भी शायर बना जी दिया। बेटा, जी जी थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे? आज शो तो आप देख ही रहे, क्या कहेंगे? 2 हफ्ते की छुट्टी भी थी हमारी। ये सुनना तो पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा इनको। अब अभी हमारी एक और मेहमान भी आएगी जो बड़ी डिसेंट सी है, सोबर सी है। अल्लाह इनको सलामत रखे आमीन। और खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरा आखिरी पैगाम शो के मुतालिक, कौम के बेटों, माँ बहन बेटियों की इज्जत करो, इनका एहतराम करो। ये आपकी वजह से नहीं, आप इनकी वजह से हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात पूरी की। महफिल को किया, मेरा खुश आप रहो। और तमाम K2 की टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बेरी। खुश रहिए जी। देखिए हमारे कॉलर्स भी जो है तो इतने गौर से आपको सुन रहे हैं और आप तेरे अंडे नु बड़े पसंद किते जिन्हों वेख अंडे 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 कर दे रहंदे ने। शुक्र कर डंडे डंडे नहीं कर देने, उसदे वास्ते ते डंडे बाड़ देने। माजरत करना चाहता जी 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 बोले, किस बात पे? हूँ। मुझे महसूस हुआ है हाँ हाँ कि जब से ये शो शुरू हुआ है, हाँ आपने मुझे बुलाया इतनी दूर से, जी बिल्कुल। मैंने आपकी शान में कोई शेर नहीं कहा। मेरे शान में और है उसके ऐसे- बारे कुछ मेरे कहना शान में अल्लाह आप खैर कुछ ना करे, कहिए। अल्लाह खैर करे ना मनु बख्शा ना उनु खूबसूरती- बख्शा हूं तेरी वार है जाजनी सोन लेकर रखो। खूबसूरती तकाजा करती है शेर के जरिए अल्लाह खैर करे बयान कि करने का। जी 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 सुने, पता नहीं क्या मेरा बेटा आंखें तेरी दो, बिल्कुल है। किते चार होंदे हैं, तेरे ते चार हुंदा। जरा उनको अल्लाह सुनने चल तो सही दें। है सही है, बोल बोल। आंखें तेरी दो, नाक मेरी एक। ते किते दो होंदे नाक ये मैं चेहरे की दिलकशी बयान करने लगा। जी जी आंखें तेरी 2 नाक मेरा 1। ते की होंदा वे ना ते दो की आंखें होंदी है ना। तेरी दो, नाक मेरी एक। आंखों में तो देखती है, नाक में भी देख। अल्लाह तक को जरा है देखई ए मसूर देखिया नु वेख के मैं कहंदा पिए। जब जाने के टाइम पे मीना, जब जाने के टाइम पे आपकी नाक पे मुक्का पड़ेगा तो आपको अभी 2 से 4 नजर आने ते शुरू तनु हो मुक्के में जाएंगे। मारा समेत दे डंडे के मक्का 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 आप मक्का क्यों मेरी बातों के बीच में बोलती हैं? एक्सक्यूज मी जाहिल औरत। तू बड़ी आ गई है जाहिल, मुंह संभाल के गाल कट जाहिल औरत। बड़ी आ गई अंग्रेज यूरोप की। हाँ, अंग्रेजा दी नकला ना मारा कर। असल में रुखसाना जी, असल में ये जो है तो आज ये लोग जो वो है ना मुतासिर होने वाली लोग हैं, ये एक विजय मुतासिर लोगों ने सिर्फ वेस्टर्न खान दिया नहीं कंट्रीज आए ने सिर पे दरूद कार छोड़ा सी, इसने भी तो उसने भी। बड़ी आला किस्म का खानदान होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। आला तालीम याफ्ता किस्म का खानदान हाँ, होगा, आला तो वो किस्म का फैमिली खानदान हो, की जो तो आपकी चुई परवरिश होगी ना तो ऑटोमेटिकली घर में इंग्लिश बोलो वो बिल्कुल इज्जत तो जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अच्छा ही। आपके हमारे वालिद घर- साहब क्या करते जी हैं? मेरे वालिद साहब जी, उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा डेथ हो जी चुकी जी है। उनकी भी तो आपकी वालदा साहब क्या करती हैं? उनकी भी डेथ हो चुकी है जी।
अच्छा अच्छा, तो घर पे कौन होता है? घर में मेरे बहुत सारे बहन भाई होते हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, छोटे 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 बच्चे हैं। अब कुछ पाई सोनी पर जाइयां भी तेरी सियां। भाई मेरे भाइयों के बच्चे हैं जी। अच्छा, आप जिन्होंने शादीशुदा जो हो? बात की नो नो आई एम सिंगल। अच्छा, सिंगल हो। जिंदगी मौत की बात हुई, सर चलो तूनु जिंदगी भी याद आ गई ते मौत भी याद आ गई। मौत का एक दिन मुतय्यन है, बेशक अल्लाह वो तक तो उस पता है मुतैया ना सब। ठिपो रहे देख उसके पे बोल दई। मौत का एक दिन मुतय्यन है, हाँ जी, टाइम निकाल के पहले क्यों नहीं मर जाते? अल्लाह तक किसको उस कह रहे हैं? देखा आपको जब हम गोली मारेंगे तो आप पहले मर जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको इनको- जिंदगी दे। हमारे शो में बैठे तू हुए गोलियां सारे लोगों ने मेहमान, बड़ी मार ली है। इनकी ये तेरी गुफ्तगू जुबान के गर्मा कार भी गर्म चलती गोली। रही। आप लोग ब्रेक ले, फिर वापस आते हैं। वेलकम, ये शायरी का ज़ौक़ भी एक ऐसा ज़ौक़ है नहीं ना नहीं, मैं वेलकम कर लूँ। कि किसी वक्त भी आमद हो सकती है इसमें। अच्छा, अभी एक सेकंड के लिए आप अपने आमद को रोके जरा। आई नो कि मुश्किल होता है, आमद तो आ जाती है फिर जहन से उड़ जाते हैं, लेकिन मैं वेलकम करूं। वेलकम जी, खुशामदीद ओ बखैर मीना के साथ। और आज मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं जो इंशाल्लाह हर दफ़ा हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमानों को मैं इन बुलाऊंगी, आंखों का आएंगे। अंदाज़ा लगाओ जिसमें इस कदर नशेबो फराज है। इन आंखों का इन आंखों का अंदाज़ा लगाओ अल्लाह जिसमें खैर। इस कदर नशेबो फराज फराज है। है। अल्लाह खैर कुछ दिनों की बात है, पागलों को भी हकूक मिल जाएंगे। देखा अल्लाह तक उस मैं समझी कि शायद अहमद फराज साहब की कोई अच्छी सी शायरी आप सुनाने वाले हैं, तो ये क्या था? ये मैं कॉपी नहीं करता, अपने शेर हैं, ज़ाती अपने शेर। जी बिल्कुल लग रहा है। तो वेलकम। आप लोग कॉल करेंगे और कॉल पे बताएंगे कि आज का शो कैसे है, जो हमारे मेहमान है ये कैसे है। हमारे साथ एक इंग्लिश टीचर है, वो भी आएगी, उनको भी बुलाएंगे जी। अच्छा जी, रुखसाना जी, सॉरी जी, आपका निक नेम रुखसार है। प्यार से लोग आपको रुखसार कह के बुलाते हैं, लेकिन बिल्कुल। रुखसार है। आप शादीशुदा हैं, अपने बारे में बताएं। बच्चे हैं, आप किस तरह की बहू हो? बुढ़ी है। तनु मैं बुढ़ी लागनी तू बड़ी जवान आ गई है। इन्होंने कहा कि मेरी पता नहीं कोई नू है, वो है वो है नहीं कुछ। नहीं नो, नुए नुए नहीं कि नोवा मोन मेरियां। हाँ नू आप पता नहीं 10वां थे कुछ इस तरह नहीं नहीं नहीं, नवा दसवा नहीं, बहू मतलब तो मतलब ये बुढ़ी है। डॉटर इन लॉ। मैं तेरी you are क्यों भी old. इस टाइम जवान बुढ़ी आती You are रहती old है। woman का ना। हाँ बैठ नहीं अंग्रेजियां ना मार दी जा डिंगिया चिबिया पे एक बोलने second, चलो, कोई पई नहीं। ना बंदे नु Okay. समझ ही नहीं आंदी। अच्छा तुसी आप दसो जी अपने आ बारे दो में नो दसो। मान कारुज दो नो मन कोई से आ नहीं गया। अच्छा, तंबाकू आपकी मारने है- से आ नहीं गया, चुप करके बैठी रहंदे थोड़ी जी भी नहीं बोल दिया नहीं अपना कम कर दे रहंदे सारा दिन। एक के वे सिर खांदी पई है, सिर दर्दी है। अच्छा। एक भी सिर दर्दी तो दुआ भी सिर दर्दी, बंदे दा बहुत खांदे पए अच्छा, नहीं। आपके चुप कर, बेटों की शादी हुई अपने है? नु देखे नहीं कहां बढ़ गई है। मीना देखिए मैं तो बोल भी नहीं रही आप खामोश हो जाए ना। चुप करके कितने बैठ गई आई है तो शुरू है तो शुरू है। 2 मिनट्स प्लीज, आप चुप हो जाए Okay, क्योंकि okay. मैं उनसे बात कर लूं। अच्छा जी, तो ये बताएं शहरी लोगों के बारे में बताएं कि अमूमन लोग कहते हैं कि जी शहरी लोग जो होते हैं वो ऐसे होते कोई कुछ ना शहरी लोग सारे अच्छे होंगे, ई विजे नहीं होंगे जेड़े नखरियां मार देनी। आप लोग चुप एक करके दूसरे को अपने target बैठे ना रहंदे नहीं, करें। अपना काम कर देना, अपने बच्चों नु संभाल देना, अपना कार संभाल देना, आप अंडी क्या रोटी कर करती देना। हो? आप क्या करती हो? माशाल्लाह कुछ नहीं आपने करनी, सूट बड़ा नो प्यारा है ना, पहना हुआ है। माशाल्लाह। लड़ाई ये मेरा नया मोहल्ले सूट में है। जा जाके लड़ाइयाँ करने वाली बुढ़ापा तो पोपो। इशारा है एक अहद का। चुप करके वो शुरू होवे उन्हें रहंदा, चल शुरू हो। बुढ़ापा तो इशारा है एक अहद का। जी, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की किसे चट्टानों बूढ़ा कौन बूढ़ी है आपने बता। इलामा इकबाल साहब के शेर का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं देखें, शेर होता है 2 मिसरों पे, एक तो मेरा अपना है इसमें। लेकिन ये आपड़े पे बोलदा पिए बोलदा अपना जा। बोले आप अलामा साहब की शायरी को खराब ना करें प्लीज। वो टच हमारी ना कौमी करें। उर्दू ना मैं जानूं मैं हूँ कौन, ना करे। ना मैं जानूं मैं हूँ कौन, पता नहीं। मुझको नहीं चाहिए बैंक से लोन। दे भी नहीं रहे। अल्लाह तक कोई तूनु देसी खुदा दी मारे तनु कोई देसी। देखिए आप खत्म हो गया आपका शेर। हंसी मजाक वाली शायरी करें तो ज्यादा अच्छा जाएगा। आप ये मेरा हंसी मजाक की तरफ मैंने एक बड़ा दुखी टाइम गुजारा है, क्यों? अल्लाह तक और उसी दुखी टाइम की वजह से ये मैं इस तरह से अबे इतनी बच्चे- संजीदा शायरी का। अच्छा, मैंने सुना है अमूमन जो शेर व शायर होते हैं वो थोड़े से ऐसे
رومانٹک انداز, تھوڑی سی ایسے دل پہ چوٹ کھا جاتے ہیں تو وہ شعر و شاعری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایکسکیوز می, لیکن ان کی شکل کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے ان کو نا کالا یرکان ہوا ہوا ہے. یہ دکھی ہے, یہ بہت ہی دکھی ہے, غمارا پٹا دیکھ ایسے کبھی سفید ہیں چٹیاں. دلوں کے تار چھیڑے ہیں تو اب سنبھالیے گا, کس کو؟ اب سنبھال لیجیے گا اس ماحول کو جس کو آپ نے چھیڑ میں نے دیا ہے. جسٹ پوچھا کہ کبھی جتنی گہری بات آپ نے پوچھ لی ہے, اب غلطی اس کی ہے. ماحول کو سنبھالنے کی ذمہ دار بھی کون شروع کردا ہے؟ آپ ہی ہوں گی. نہیں مجھ کو عادت بولنے کی, اے تنو عادت نہیں کی اللہ تک سے عادت نہ وسی تے نہیں مجھ کو عادت بولنے کی, تم میری خاموشی کا مزہ لو. ویل تو کرتے تے تیرے خاموشیاں دا مزہ لیسیاں نہ. نہیں مجھ کو عادت تے شروع ہے تے شروع ہے تے شروع ہے. نہیں مجھ کو عادت بولنے کی, تم میری خاموشی کا مزہ لو. اوے چپ کر سے کیا رکھا ہے اس ویرانے میں. سنے شاعری اچھی ہے ماشاءاللہ. یہ آخری والا ذرا گزارا میرے خیال میں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ہاں بالکل. میں آپ کے لیے ریپیٹ کرتا, نہیں مجھ کو عادت بولنے کی, میری خاموشی کا مزہ لو. لو, واہ واہ واہ. کیا رکھا ہے اس ویرانے میں, چلو چلتے ہیں لکیرانی سرکس. واہ, اے اون لینڈ آیا, ان کو بھی ساتھ لے جائیے گا. تنو لے جاویں جے بھی لاگنی ادھر دی چوک. ایسے لوگ ملتے ہیں وہاں. والا دا بھی دیکھ جوگرا. شروعات آپ کی بہت ہی زبردست ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنوں, آپ کے طریقے کو سنوں, آپ کے انداز کو سنوں, لیکن یہ اینڈ میں آپ کیا کر جاتے ہیں شعر و شاعری. آخر میں دل کرتا ہے آپ کے منہ پہ ایک رکھ کے لگا دوں. کیا کر کے لگانا؟ رکھ کے لگا دوں. اچھا آپ نے کہا رکھ کے. رکھ کے نا رکھ کے لگا سمیت تنو بھی دو چار تھٹیاں. دیکھیں دیکھیں جب میں بات آپ لوگوں کو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی خواتین ہیں. یہ اس طرح کی خواتین ہیں جو شہر میں رہتی ہیں, لڑنے جھگڑنے والی. میرے لیے اس طرح دی بھی این کہ جنوں نکے وڈیاں دا لحاظ ہی نہیں گئے تے بھی خبر. میرے لیے نئی بات نہیں یہ منہ پہ رکھ کے لگا دوں. بہت کھائی ہیں لگا دو چار لگا زندگی میں, بہت کھائی ہیں میں نے, اچھا بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. کس عرض کیا ہے تم کو ملے گی وہ راحت, تم کو ملے گی وہ راحت جس کے تم متمنی ہو. اچھا ہاں ہاں, تم کو ملے گی وہ راحت جس کے تم متمنی ہو. ریشم کا ہے لہنگا میرا جالی کی چنریا. چل جا اونے رہندا آیا رہندا آیا تنو ریشم دا لہنگا یاد آ گیا, اپنی ووٹی دا یاد آ گیا. ایکسکیوز می, what is the meaning of متمنی؟ متمنی کہتے ہیں جب آپ میں غیرت کی مقدار انتہائی نچلی سطح پر چلی جائے. یعنی آپ کی, جس کی بھی ہو. تیرے ریشم دے لہنگے دا کیا کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. سوری جی, یہ ہو کیا رہے, ریشم دا لہنگا پایا, ریشم کے لہنگے سے باہر آ جائے, شعر و شاعری کے ادب و آداب میں آ جائے. یہ آپ کس, میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ ایک کال لینے لگی تھی. ہاں جی بالکل. تو اس کال کے بیچ میں ایک آواز آئی ٹو کی. اس ٹو سے بڑا پرانا واسطہ ہے ہمارا. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اسی بارے میں سناتا ہوں شعر. اس دل کی بستی کو تم اکھاڑ دو, ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اس دل کی بستی کو تم اکھاڑ دو, جو 14 اگست کو پوپو کرتے ہیں ان کے تبلے پھاڑ دو. خیر دا دل خوش کر چھوڑیا, خیر و دل خوش کر سے جا جا کے ہن مان سہی. اب لگے کہ ہاں کال لے لیتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم علم سے حفیظ بات کر رہے ہیں. حفیظ آپ کو ویلکم اسٹوڈی مشی, کیا کہیں گے؟ ہاں شکریہ جناب, میں بہت عرصے سے آپ کو فون کرتا ہوں لیکن رابطہ تھوڑا ممکن ہے. چلے آج تو آپ کو موقع مل گیا نا, کیا کہیں گے آپ؟ بس ہم تمہارے لیے بس دعا سلام کے لیے وہ فون کیا آپ کے لیے. دبئی سے ہمارا بھائی بھی بیٹھا ہے. اچھا یہ بتاؤ شو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ شو تمہارا میں بہت اچھا لگتا ہے, پورا شو ہم دیکھ رہا ہوں. جب مینو شو ہے وہ بھی اچھا طریقے سے دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ لیکن اب جی جی لیکن کیا میں لیکن اردو زیادہ معلوم نہیں ہے, میں پٹھان ہوں علم سے. اچھا جی آپ پشتو میں بات کرو, کوئی نہیں آپ پشتو میں بات کرو. ہاں اچھا مینو خیر تاسو وایي چې تاسو سلام کوم لکه تا پروګرامونه زه ډېر زیات ګورم ولا چې تا مینو شینو مینو کومه شو چې دا ډېر خوند کوي. ډېره زیاته مننه د فون کولو دپاره او د ستاینې دپاره. دا شو هم ګورئ, دا شو هم ډېره مزدار څنګه چې هغه په پښتو کې کامیډي شو ده, داسې دا په اردو کې ده, نو دا به هم ستاسو زړه ته پروزي.
او زه ګورم هوته دا چې لږ زمانہ د فونو چې دای زما حافظ نام دی او تاسو شوز ډېر په شوق سره ګورم هر شو دی دا ٹھیک شو جی، ڈیرا منانا. حفیظ نے الین سے ہمیں کال کی اور حفیظ کہہ رہے کہ آپ کے شوز مجھے بہت پسند ہے اور آپ لوگوں کے سلام بھیجوائے جی. تھینک یو سو مچ جی. ابھی ٹائم ہے ایک بریک کا جی، تو میں بریک کے بعد آپ کی شعر و شاعری سن لوں گی. پلیز ابھی ہم عرض کی بریک لے پلیز. ویلکم، خوش آمدید جی. آج پتہ نہیں ان کے منہ میں کیسے بند کر آؤں، ایسے بس لگے ہوئے مسلسل جی. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ شو پسند کر رہے ہیں. مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہاں لوگ شو پسند کر رہے ہو، دیکھ رہے. تو تھینک یو سو مچ. اس میسیجز کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی، جن کا انٹرو میں لازمی ہے کہ ابھی کروں جی. ثنا مقصود صاحبہ ان کا نام ہے جی، اور یہ انگلش ٹیچر ہے جی، اور یہاں ایک بہت ہی مشہور اسکول ہے، اس میں جو ہے تو بطور ٹیچر جو ہے یہ اپنے خدمات جو ہے وہ پیش کرتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اتنے ماڈرن قسم کے اور اتنے معذب قسم کے مہمان آئے ہوئے، تو کیوں نہ ان کو بلایا جائے. تو ثنا کو ویلکم کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ثنا، کیسی ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مہمانوں کا تعارف کرا دیتی ہوں. رخسانہ ہے جی، شہر کی گھریلو خاتون، گھرگرستی سنبھالنے والی. آپ ہے جی شہریار صاحب، بہت ہی مانے ہوئے منجے ہوئے شاعر ہے جی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی شاعری کرتے ہیں. اینی ہے ہماری بہت ہی ماڈ اسکاٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ہی انگلش گریجویٹ لڑکی ہے ماشاء اللہ. ہاں تو اور آپ میں نے کہا سب سے مل جل کر کے تو میں خوش آمدید کہوں گا جی پلیز. ایک خوبصورت شعر کے ساتھ. نہیں ابھی نہیں. میرے خیال میں اگر میں ان کو خوش آمدید اینڈ میں پروگرام کے بعد کروں تو پھر خوش آمدید تو نہیں ہوگا نا. اچھا جی ابھی کر دیں. چلے بس بولنے دو، بولے. نہ پوچھو مجھ سے میرے درد کی شدت، نہ پوچھو مجھ سے میرے درد کی شدت، واہ واہ. بولنے دو میری آنکھوں کو. بھی بول دیا نہیں. بولنے دو میری آنکھوں کو. نہ پوچھو مجھ سے میرے درد کی شدت، بولنے دو میری آنکھوں کو. چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے دل میرا، بلا کی جانے میں کون. کون جانے؟ ملا کی جانے میں کون؟ کبوترا پہ ملا کی جانے، امی جانے. ہاں تو بہت بہت شکریہ آپ کی شعر و شاعری کا، بہت ہی اعلیٰ معیار قسم. مائنڈ نہ کرے بس، وہ اس ٹائپ کی شعر و شاعری ان کی ہوتی ہے، کیا کرے. اچھا جی ثنا اپنے بارے میں بتاؤ. ماشاءاللہ آپ پشاور سے بلانگ کرتی ہو اور آپ ایک انگلش ٹیچر ہو اور انگلش پڑھاتی ہے آپ بچوں کو. 8-9 کے اسٹوڈنٹ ہو جائے آپ کے؟ No, I teach from 4 to 7. 4 to 7. اوکے جی. And I'm teaching since 8 years, you can say. ماشاءاللہ 8 سال سے زبردست. And I'm teaching boys. او بوائز تو بڑے نوٹی ٹائپ کے ہوتے ہیں. No, they are not that much like we think. No, they are very much respecting, you know. They give respect, a lot of respect. ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اساتذہ آپ کے روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا، ان کے ساتھ ادب و آداب سے پیش آنا میرے خیال سے بہت ہی بڑی بات ہے. ڈرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ خاموش خاموش خاموش، میم آئیے میم آئیے. Yes, sometimes, but I'm very much lively. I'm not like I teach them in a friendly way. اوکے. اچھا ثنا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ بڑی غصے والی ٹیچر ہے نا؟ But it's not actual. I'm not like this. نہیں ہے ایکچوئل میں ایسی نہیں ہے ثنا. Physically like appearance, in appearance you can say. But I'm very much witty, you can say. I am. پھر تو ٹھیک ہے جی. اوکے جی ثنا اپنی چوائس پہ آئی ہو کہ کچھ بچیوں کا یا کچھ لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انہیں میں نے انجینئرنگ سائڈ پہ جانا ہے، نہیں میں نے لا سائڈ پہ جانا ہے. اور لیکن کچھ فیملی کے کچھ لوگوں کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں یار یہ میرے یہ پیشہ مجھے پسند ہے، اس میں آپ چلی جاؤ. تو بائی چوائس آئی ہو کہ نہیں؟ Okay, I took it by choice. When I was, you can say in grade 5, there was a teacher whose name was Ma'am Taiba. And one day she asked us that what you are going to become in future. So I at once said that I want to become a teacher. And I think so from that day it was like a dream for me. Maybe شاید وہ آپ کی آئیڈیل تھی، آپ ان کو دیکھ. No, she wasn't my ideal, but I told you now, I just
said at once that I want to be a teacher. اور انہوں نے پروف کر دیے یہ ٹیچر بن گئی اور ماشاءاللہ 8 سال سے آپ ٹیچ کر رہی ہو اور ماشاءاللہ ایک کہہ لینا کہ جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ وہ ان سے بڑے خوش ہیں مطمئن ہیں اور میرے خیال سے کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس دوسرے کلاس میں جاتے ہوں گے تو آپ کو بہت مس کرتے ہوں گے کہ بھئی ہماری یہ ٹیچر ہمیں بہت اچھا پڑھاتی تھی بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی تھی. کچھ ٹیچرز بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں ان سے اگر یہ کویسچن بار بار بھی پوچھے تو مائنڈ نہیں کرتے ایسا No way. No way. کیوں No way. All teacher is not that like. Okay, teachers, all teacher is, you must say, okay? بولنے آتی نہیں تو بول All teachers, no, plural is. I know very well. ملے ہیں دو نین بڑے I know نصیبوں very سے well. ملے ہیں دو نین بڑے نصیبوں سے شمار ہوتا ہے ہمارا غریبوں میں. ہاں واہ 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 بس یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ اور نکلے گا بس ٹھیک ہے. Well, I'm not getting him. ریئلی Yes, I'm not getting him. دوبارہ بول دیتے جی. میں انگلش میں شعر سنانا چاہوں گا شروع اردو سے ہوتا ہے اینڈ انگلش میں. اور انگلش رہندا ہم سفر میرے آج کہاں ہیں. ہم سفر میرے آج کہاں ہے پتہ نہیں. یہ مصرے کو سن کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اب مذاق کی سے بات نکل چکی ہے اب ہم سنجیدگی کی طرف. سنجیدہ. ہم سفر میرے آج کہاں ہیں کہاں ہے میں جو رواں دواں ہوں ان منزلوں پر. واہ 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 میں جو رواں دواں ہوں ان منزلوں ہم سفر میرے آج کہاں ہیں میں جو رواں دواں ہوں ان منزلوں پر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں میرے. وہاں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں میرے. آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں میرے لیکن محسوس ہوتا ہے ناک سے نکل رہے ہیں. ہیں کے پہ سر کھانا ہے تو کے پہ بولنا پیا میں. یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اینڈ میں کچھ actually he is نکلے گا so کچھ. dirty, so dirty. دیکھیں انگلش ٹیچر بیٹھی ہوئی I know that. I know. تھوڑا سا خیال رکھے. I know. پھر blind. I know English. یو نو انگلش. Yes. اچھا تو پھر بات کریں نا تھوڑا سا میم کے ساتھ بات کریں. But فون she ذرا don't. دیکھا. She don't. No. Okay, I don't. بول ذرا دیکھا. She don't. شی ڈونٹ نو. Oh, yes. کیسے کہہ سکتی ہو یار وہ انگلش ٹیچر ہے کیسے کہہ سکتی ہو. میں ان کی انگلش سن کے مجھے لگا کہ ان کو انگلش سو آتی ہے زیادہ. سنا اس میرے لیول کی انگلش نہیں بول سر پہ سکتی کھانے ہیں پہ یہ. یا کتنے سنا کہہ دے میں اس طرح بولنا بھی نہیں چاہ Well, رہی. to some you can say extent, you must be right. I can't speak کتنی like اچھی you. بچی آئی ہے چپ کر کے بیٹھی ہے سونیا گلا کر دیا نہیں تو پہ کے بولنے پئی ہیں. انہوں درس سمجھ آئی ہے انہوں نے کیا کی. انگلش سن سن کے مجھے اپنی وہ پرانی یادیں آتی جا رہی ہیں. کون سی جو آپ باہر تھے. ایگزیکٹلی. اچھا اس ٹائم میں نے ایک شعر کہا تھا ٹوڈے ٹوڈے اوکے ٹمورو ٹوڈے ٹمارو. اینڈ ڈے آفٹر ٹمورو. ابے میرا شعر سن پاسے تیری بڑی سون چھوڑی ہے. انگلش کا شعر ہے سنیے. ابے نا میرا سون وا تیرا سون سا مانا کہ تم حسین ہو پر اس قدر نہیں جتنا تنے منو ادھر بیٹھ کے چلا بڑا چھوڑا اپنے ٹوٹے پجے شعرا بور بور کے ابے چپ کر جا. اچھا اچھا ابھی ہم میم ثنا کی طرف آ جاتے ہیں اور میم ثنا جو ہے تو اب اردو میں بات کرے گی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. آپ لوگوں کو نا جاہل پیپلس. اب آپ جب آپ ابھی زبان سنبھال کے گل اس کو کر. انگلش میں کہتے ہیں ٹرانزیشن. یا بالکل انگلش سے اردو کی طرف ٹرانزیشن. جی بالکل. تو اس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا ٹوڈے ٹمورو اینڈ ڈے آفٹر ٹمورو. جی بالکل. عرض مقرر کو انگلش میں کہتے ہیں ریپیٹ. ریپیٹ جی تو ضروری ہے کہ میں کہوں کہ ٹوڈے ٹمورو اینڈ ڈے آفٹر ٹمورو اللہ بٹ بیفور ڈے آفٹر ٹمورو دیر از اے ٹمورو. اللہ تک ذرا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈے آفٹر ٹمارو آپ سب مل کر مجھ کو مارو. او ویری نال نائس. تنو تے صحیح کوٹ دے وے تیرا بڑا دل کر دا. ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہ کل بھی تنو صحیح بندہ مارو کوٹ دے. اچھا میں اس میم ثنا تنو سے لے کے تن بندہ صحیح کوٹ دے وے. یہ آنٹی مسلسل اونی چوی آنٹی کینو کہنی ہے. یہ آنٹی او مسلسل چوی مجھے چوی انٹرپٹ کر تنو رہی ہیں. کہنی پیچھے ہے سے آنٹی تانگ آنٹی تو تانگ آپ کر چوی. رہی ہیں. مجھے اچھا بات گل کرنے سنو دیں. تسی ذرا چوری تلے سانس لے تسی جی سونی جی خاتون ہو کوئی نہ سونے پندہ ماشاءاللہ. مظاہرہ کھاندی پئی ہے انگلش پہ بول دی پئی ہے. آتش فشاں کو پھٹنے دو. ابے کل میرا دکھا چھوڑی آتش پشا نہ تے ٹھپڑ تے کدے دیرا دے ہوتے تیرے پہ سونے کدی انڈے بیچنا ہے کدی کوفتے بیچنا ہے کدی کے کرنا ہے کدی کبوتر اڑانا ہے. دعا کم نہیں گا بس سٹی وجایا کر. اچھا اچھا ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اپنے گھر میں بلا رہی ہیں. بند کرے خاموش ہو جائے. مہمان چپ کر ہمارے جا, کیا چپ کر. سوچتی ہوگی کہ میں کس جگہ پہ آ چکی ہوں کس ٹائپ کے لوگ ہیں جو مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے. بالکل سینس ہی نہیں ہے ان میں. ہاں بالکل. اور آپ ذرا انگلش احتیاط وغیرہ یو نو پھر میرے شو کی ریٹنگ غلط ہو جائے گی. اچھا جی تو ثنا جی یہ آج کل لوگ بہت زیادہ انگلش بولتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انگلش بولنے سے شاید ہم تھوڑے سے ماڈرنزم کی طرف آ جائیں گے شاید ہم ماڈرن لگیں گے. بھلے انگلش کے ہاتھ پاؤں سب کچھ توڑ دیتے ہیں
ये मेरे बड़ी ख्याल से अगर पानी एक है। चीज़ प्रॉपर ना आए तो उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बस एक फैशन बनाया हुआ है। आप क्या कहेंगे उस तरह लोगों के बारे में? Okay, we must not think like this. हम उर्दू में First बोल of लेते हैं, all, समझ आते थे। first of all, English is our native language, right? So if people they are trying to speak in English, and secondly, we can't deny this fact that this is need of the day as well. लेकिन अगर प्रॉपर आए, आप प्रोनाउंस सही कर पाओ, देन Okay, look, I believe कि आप जब mistakes करते हैं ना, then you learn something. This is the thing, and we must not be hesitant while speaking English. And when like she's trying, and I must appreciate her. वो तो कह रहे अनुज यार इंग्लिश बोले मेरे यार Let him think like this. Like this, she will learn. You know. बट लेकिन लाइव में इंसल्ट हो रही है ना, अब वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रही, अब क्या समझाऊं मैं इसको। लेकिन नहीं, नथिंग, आपकी तारीफ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं तारीफ की कोई जगह माशाल्लाह। है नहीं कि तारीफ करनी है। आंटी प्लीज चुप करके प्लीज चुप करके तू बातें बैठ जा। सुन के और दुनिया की इस गहमा गहमी में जैसे आप लोग मसरूफ हैं, नहीं मसरूफ तो नहीं है, बातें कर रहे हैं। अरे शेरो शायरी छोड़, छोले वाले नाल बैठ के ते पलेटा तोया कर, वो दुनिया तेरे में- वास्ते अच्छा ही। दुनिया में सुन आप जा। लोग गुम चुके हैं। क्या हो चुके हैं? दुनिया में गुम हो चुके हैं। अच्छा, हमारा- गुम हो चुके हैं। तो उस पे मेरे जहन में आया कि दुनिया में जो कमाना था कमा लिया, दुनिया में जो कमाना था कमा लिया। लिया, ओके। जाओ, मैंने तुम्हारी पूछल से पाँव उठा लिया। अल्लाह तक सिर ते दरुद कर छोड़ी जा, पलेटा तो Oh my छोले वाले God, नाल से बैठ। आप तुझे नाल बार दावे मेरे नाल खामोश ना। हो जाए, खामोश हो जाए। क्या पता नहीं कित्थों सी आई मुझे भी है। अपनी तरह बना रहे हो आप लोग, जरा खामोश हो जाए। आंटी की पूछल भी है। ओ चुवी दे भी पूछ ले। ऐसा है कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर ब्रेक के बाद आके मैं सना से पूछूंगी कि आया जो एजुकेशन है, या गर्ल्स एजुकेशन या बॉयज़ एजुकेशन या एजुकेशन इन पेशावर, वो किस लेवल पे है और किस तरह है, उस पे बात करेंगी जी। तो ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं, तो छोड़ दें आप बस। वेलकम, खुश आमदेद जी। ब्रेक के बाद ऊपर खैर मीना के साथ आज मेरे साथ क्या है, कौन है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, सिवाय माशाल्लाह सना की। बाकी तो है अपने आप में कुछ मंजे हुए लोग हैं जी। आप दहशत की ये शिद्दत है छोड़ दे कि शेख। सामने दरख्त पे बैठा एक कौवा गुल मचाता, शोर करता, क्या मचाता? आहें भरता। अबे गुल भी विश्कार अंदस। गुल मतलब के शोरो गुल, अल्लाह तको जा। गुल मचाता, ए, उड़ेंदा आया, शोर शेर करता, रहंदा आया। आहें भरता, पूछ रहा है खुद से मैं कौन हूँ, मैं कौन मुझे हूँ? क्या तू पता चला कौन वे, है, तू आप चला चुप वे, हो तू जाए चला जरा। वे। मैं कौन हूँ? अभी शेर रहता है। मैं अबे तू कौन चला वे, हूँ, तू मैं चला वे, कौन तू हूँ, चला वे। मैं कौन हूँ, मैं मैंने कौन हूँ? गलती की कि आपको मैंने कॉल करके बुलाया, मुझे नहीं था पता कि आपकी शायरी की मयार ये है। तू कौन कहता फोन करके नु बुला, टेलीफोन करके। जी जी। प्लीज आप आंटी चुप करें। अनि चुवी तू चुप कर, काफी देरी मैं दी कॉल ले तेरी लेती पे हूँ। बकवास हेलो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने आइडियाज बनाए हैं वो फिर। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से हैं? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ जी, पेशावर से। जी अदनान, आपको वेलकम। क्या कहेंगे अदनान? जी थैंक यू जी। बस आपका शो देख रहा था काफी देर से, और आज तो बहुत एंटरटेनमेंट है माशाल्लाह। आज तो शायर साहब भी आए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी शायरी कर रहे हैं। अच्छी अच्छी शायरी कर रहे हैं। जी मैंने माशाल्लाह उनका सर शौक तो ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह वो बहुत पुराने शायर हैं। जी बिल्कुल, वो ये बात। मेरा आखिरी दीवान है जिसके शेर आज मैं लेके आया हूँ। अच्छा, और आज सुना के जाएंगे, हमारा दिमाग खराब करेंगे। और और सुनाओ सिर शो बन के- लसियां। जी मीना कार जी जाने माशाल्लाह आज प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा। मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, हम सब पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, देख रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी कि आप शो को पसंद कर रहे हैं। और कोई मेहमानों से, इवन सना जो है एजुकेशनिस्ट है, या बाकी ऐनी साहिबा जो है, इनसे कोई बातचीत या शहदारी खातून है? जी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए वो आते हैं और हम जैसे लोगों को घर बैठे एंटरटेन करते हैं।
بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت جی بہت ایک منٹ مینا جی, میں آپ کے لیے شاعر صاحب کو ایک شعر سنانا چاہوں گا. پہلا آوشکار ہے. اچھا جی آپ رہتے چلو جی بولو. پلیز بولو ارشاد. بولو جی. جی شعر وہ آپ کے لیے ہوگا. اچھا شعر میرے لیے ہوگا, اوکے جی سناؤں گا میں انہیں جی. اچھا سنائیں گے آپ کو, ہے میرے لیے, اوکے جی چلے جی میں سٹارٹ لیتا ہوں جی. ارشاد. ایسے لہرا کہ تو روبرو آ گئی, ایسے لہرا کہ تو روبرو آ گئی, دھڑکنے بے تحاشا تڑپنے لگی, ایسا لگا درد ایسا جگہ, تیر ایسا لگا درد ایسا جگہ, چوٹ دل پہ جو کھائی مزہ آ گیا, میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر, جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. بہت بہت شکریہ. جو شعر سناتے ہوئے یہ روئے ہیں, نہیں اس میں روئے نہیں ہے, اے روئے نہیں گا, کان واج دے پئی نہیں. ہاں بہت بہت شکریہ جی کان کال واج دے کرنے کے پائی. لیے. اچھا اس سے پہلے کہ مزید جی جنجال پورا بول پڑے, میں چوئی کافی دیر سے آپ تو پہ دونوں بول ذرا رہے خاموش ہو جائے, میں مہمان سے بات کروں. اب ایک 1.5 گھنٹے سی پہ مغز کھانا پیا میں تیرا راسی اور بھی سون سی آئی سی بات بھی. سنو تسی ذرا خاموش ہو جائے, میں مہمان کو انی کتنی دیر ہے خاموش بیٹھی ہیں, مہمان اے پہ بول دے پئے نہیں. Oh my God, میں تو بولی ہی نہیں ہوں. اوکے سنا جی, ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں, جیسے کہ میں بریکس پہ جانے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ایجوکیشن, گرلز ایجوکیشن کے بارے میں بتائے, بوائز ایجوکیشن کے بارے میں بتائے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ بڑے بڑے بنگلے لے کے اس میں جو ہے نا پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ کھول دیتے ہیں اور بڑے بڑی فیسز لے لیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کے وہ بس ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے, فلاں اسکول کے اتنے نمبرز آئے تو ہمارے بھی اتنے نمبرز آنے چاہیے. آپ کو لگتا نہیں کسی کمپٹیشن میں ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. لائک آج کل تو ایجوکیشن میرے خیال سے زیادہ بزنس ہو گیا, یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اسپیشلی. پر پھر بھی اب عمران خان نے تو ایک بہت اچھا سٹیپ لیے کہ ہر جگہ پہ جو ہے سیم کریکولم ہے, اور اس کی وجہ سے شاید بالکل جی سیم ہے, اور اس کی وجہ سے شاید بہتری آئے. اور باقی ایجوکیشن لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے جو ہے تو وہ سیم امپورٹنس رکھتی ہے. اسپیشلی میرے خیال سے لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے, لڑکے تو چلو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں, لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا. اور اسلام میں بھی ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ لڑکیوں کی جو ہے تو ان کو بھی پورا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا, اور ان کی اچھی تربیت کی جائے. بالکل بالکل. اچھا تو آپ کے خیال میں کہ مطلب اب جو ہے یہ جو اس بات سے آپ نے بھی ایگری کیا کہ بزنس ہے, اور سبق تو چلو ایک ہو گیا, سکولز پرائیویٹ اور سرکاری تقریباً سیم ہو گئے, لیکن میں اکثر اپنے نیفیوز کے, میں ماشاءاللہ وہ ابھی پلے گروپ سے اور نرسری میں گیا, لیکن جب میں ان کے پڑھائی کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یار یہ بیچارے ابھی کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور ان کو اتنے زیادہ جو ہے تو مشکل جو ہے تو وہ ان کو یاد کرنے کے اور بڑے بڑے سبجیکٹس دے دیتے ہیں. میں کہتی ہوں یار تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, مطلب ہمارے ٹائم پہ مطلب وہ سٹارٹ بیسک سے لے کے سٹارٹ کرتے تھے, ابھی تو ایسے لگ رہے ہیں دوسری اور تیسری کی بکس پکڑوا دیے. بالکل, یہ تو آج کل ہر جگہ پہ ہے نا. لائک آپ 3 to 4 ایئرز یعنی اسٹارٹنگ ایج ہے, اگر آپ لیٹ کریں گے تو وہ پھر بچہ جو ہے تو وہ سفر کرتا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے, آپ نے کیا کہا ہے 5 years is starting age? Yes. No. play بولنے آندی نہیں گی تے بول دی پئی ہے. آنٹی جی جسٹ شٹ اپ پلیز. چوئی تیرے نال ہے, تینوں کیا آندی ہے بولنے. مت کیا کریں پلیز آنٹی. ہے نہ چین آتا ہے. چلو جی گولی کھائیں اور سو جائیں. اور تو لا کے دے دے تے کھا لیتی سمیت دے, تو بھی سو جا. اچھا سیکنڈ میں نہ چین آتا ہے. شاور کے نیچے کھڑے ہو تو پانی نہیں آتا. تو ٹینکی پر سے تے پانی آسیا. ہاں کیا رہا ہے پہلے آپ کتھے پانی کتھے انڈے کتھے کھوڑیاں کتھے کبوترا پتہ نہیں کیا آیا وے تے پھر کھاندا پیا وے. آپ ذرا شاعری کا معیار اچھا کرے, کیا کر رہے ہیں اس آتش فشاں کو پھٹنے دو. اوے مرو گاوی چپ کر جا.
चुप कर जा मगुस खा छोड़ी 1.5 घंटे दा चुप ही नहीं करना वे चुप कर जा बेड़ा आंटी, आप भी तो बोली जा रही चुई तू भी चुप कर जा कितनी देर दी निशा पे बोलनी आंटी ना ते ठिपो ये भी तो बोली जा रही है ना। मगुस खाने पे एक कितनी second, देर दी आप और बेड़ा करो खामोश। कोई चुप करके बैठ जा तू भी चुप करना नहीं शुरू है चुप ही नहीं कर रहा फिर कितनी देर पे तेरी तमाशा सुनने पई नहीं, ये तो बहुत जाली आंटी है, इसने बहुत मुझे नानी जाए कह दी। हाँ जी, हाँ जी। तनु बड़े नहीं कह आपने मुझे नानी कह दिए के नानी कह के नानी तनु नहीं किया चुई नु किया है मैं कहाँ से नानी लगती हूँ, मैं तो अभी सिंगल हूँ। आई चुई नु देख जरा सरी बरी गुजर जाएगा बचपन तेरा। अबे बेरा घरू कोई सिर ते दरुद कार छोड़ी कितने देर आदा मैं कहनी सिर दा दुपट्टा भी निंगा के बंद आई थे बैठ के अच्छा अच्छा एक ये दुपट्टा गले में डाले और खुदकुशी कर लें आप। ए तू ही कर ले तनु करके तो खुदकुशी कर आ एक सेकंड मैं जरा शहरियार साहब से पूछूं शहरियार साहब आप जो इस टाइप की शेरो शायरी करते हैं आप जाते होंगे शेरो शायरी की महफिलों में जाते होंगे बुलाते हैं लोग आपको हां जुतिया नाल बात मार दे पीछे आपको बताऊं कि नहीं मेरी बात भी ऐसी जुत्ती नाल मार सिया से उठे इनु मैं जुतिया दा मार ना जीता वा ते दोबारा मोड़ के भी दुना आज सारे शेर सुनाए हैं लंदन में इसकी लाखों रुपए की टिकट लेके लोग आते हैं वो सुनने। समझते हैं आपकी शेरो अनेक मैं अबे ओ आपको चले ओ सुन समझने की लेके आसिया समझने की बात का जवाब दूं। एक दफा मैं ये ग्रीस से इंग्लैंड की फ्लाइट थी हाँ तो रास्ते में मैंने इसी तरह शेरो शायरी शुरू की। तकरीबन 250 लोग मौजूद थे जहाज में मतलब ग्रीस से इंग्लैंड ट्रेन तो नहीं जाती जहाज में जाना पड़ता है। मैं यही तो कह रही हूँ कि आप ये शेरो शायरी जहाज में सुना रहे जहाज में मैंने शुरू किए अच्छा। शेरो शायरी। थे वो जगह रह गई तो जहाज जब लैंड किया तो कैप्टन ने आके मेरा खास शुक्रिया अदा किया। क्यों उन्होंने कहा कि आपने शेरो शायरी शुरू की तो ये सारे सोए वरना जाग रहे थे सारा टाइम। अच्छा तो जुतिया दा मार नहीं दिता के तनु चुप के दे बार कर लेंदे या जासी तली तनु फट आपके लेंदे लिए अर्ज करता हूँ एक इस आतिश फिशा को फटने दो। अबे मरो गावी ते के आला मीना मुझे लगता है ना मैं आपको बेड़ा घरू कोवी ते के आला आंटी 1.5 घंटे दा तेरी फरियाद सुनने पईया ते आपी तारीफां पे बोलना पिया अबे चुप कर बात जा सुनिए अनि शहरियार तू भी चुप कर जा शहरियार बस साहब आप जब उनको मुखातिब करके शेरो शायरी तो आतिश पिशाब क्यों पड़ जाती है उधर के पता नु के नजर आनी है आंटी के मेरा अंदर घरू कोवी बहुत ज्यादा आतिश फिशा है जो अनि चुवी तेरे अंदर है सारी आतिश पिछा जेरी अंदर ते जेरी बाहर नहीं अब जरा लम्मिया लम्मिया हाथा जेरी इलानी अब जरा हम जरा दहरे के अंदर रह के बात करेंगे बाहर नहीं निकलेंगे कोई नहीं हो जाता है आप आज हमारी मेहमान हैं कभी सोचा कि आप इस टाइम की लोगों के साथ आप मेहमान बन के आएंगे इतनी अच्छी बच्ची बैठी है कैसा लग रहा है आपको Too much. क्योंकि आप जब वही वाला डेली का रूटीन होता है सुबह उठ के स्कूल जाना फिर टीच करना बच्चों को फिर घर आके फिर वही सारा कुछ तैयारी करना तो वो रूटीन लाइफ से हट के है ना कुछ बिल्कुल एंटरटेनमेंट वो हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ अपने बारे में बताओ टीचर आप हो बेस्ट हो लेकिन घर के काम शाम करती हो बस थोड़े बहुत हाउस वाइफ फिर भी कर लेती साथ में है। स्टडीज Working भी है ladies ना का थोड़ा सा स्टडीज भी हैं साथ में और बस स्टडीज क्या कर रही है आप मास्टर्स आई एम डूइंग मास्टर्स। अच्छा मास्टर कर रही है तो घर के काम बिल्कुल नहीं करती नहीं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती बस मैनेज हो जाता है कर लेती खाना हूँ। पकाना कर लेती है नहीं खाना नहीं किचन से एलर्जी है नहीं इस तरह की बात भी नहीं है कि एलर्जी है पर बस नहीं आई डोंट कुक। ओके जी खाना पीना क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ओके जंक फूड तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यही बस जो अम्मी खाने बनाती हैं अम्मी बस के हाथ उनकी का बात ही कुछ और होती है। आपकी हाँ अम्मा के खानों का मज़े कुछ और होता है ओके जी और अमूमन मैंने देखा है जो असातिज़ा होते हैं वो बड़ी डिसेंट बड़ी सोबर किस्म की ड्रेसिंग करते हैं आपकी ड्रेसिंग क्या है आप किस टाइप की ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करती हो कि मैं भी बस ज़्यादा सिंपल ही रहती हूँ और ज़्यादा मेकअप नहीं है तो यहाँ आने की वजह से मैंने लाइक यू नो मेकअप इतना ज़्यादा किया है और ड्रेसिंग में बस नॉर्मली आई वेयर शलवार कमीज सिंपल शलवार कमीज फारिग वक्त मिलता है तो क्या करती हो फारिग वक्त में मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है आई रीड नॉवेल्स। किसको ज़्यादा पढ़ती हैं किसके नावल ज़्यादा पसंद है कोई ख़ास इस तरह मेरे राइटर नहीं है पर खालिद हुसैनी हैं उनके 2 नॉवेल्स आई हैव रेड और उसके अलावा एलिफ शफक हैं उसके 40 रूल्स ऑफ लव आई रिसेंटली रेड एंड इट वाज वंडरफुल। ओके मतलब आप सजेस्ट करती है बाकी लोगों को जी बिल्कुल रीडिंग तो मस्ट है मस्ट है लाइक अभी आपने जैसे स्टार्ट में इम्तिहान दिए हैं हमने हाँ? इस कदर मोहब्बत के इम्तिहान दिए हैं हमने
कल रहीम यार खान में बारिश का इम्कान है। चल ले तक जरा मौसमियात भी मैं मौसमियात दे विशकारी इस आतिश फिशां को फटने दे। अबे मरो गावी ते क्या अल्लाह, अबे चुप कर ते क्या अल्लाह, तने ते मेरा मगज खा छोड़ा, नजदीक ही बैठा मेरा कान खा छोड़ा ही। अबे चुप कर। आतिश पिशा का क्या सीन है शायर साहब, जरा ये आज क्लियर कर दे जरा। इनको देख के मुझे Yes, वो मिसरा जहन में आता है क्योंकि इन्होंने एक यस ना ठिपुर चुप बिखेरती कर। खूबसूरती है। आंटी आप चुप रहे। अच्छा जी, अच्छा जी, अखीर ओके जी, अच्छा जी, तो इनको देख के आ जाते हैं। ओके जी, ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या हुआ? जरा हुण मैं इसका बंदोबस्त करना। किस दा? शो तो खत्म हो गया ना। नहीं नहीं, आप इनको बोलती हो, आप तो कह रही हो हाँ नहीं के लगी है किस टाइम ही है। डेढ़ घंटा हो गया ना, ठिपुर हो गया। इनको बोलने आनी तो वडियां क्यों साडनी दूर बैठ के इंग्लिश बोलने पे ना। चुप कर, वड्डी किसी थानेदार ने अनि बैठ ना जी आराम से। तू के टांगे चलाने वाली? हां टांगे पे चलानी है, चिंचे चलानी है, लोगों के पीछे डब्बे पे मारनी पई, साड़ने पई। अच्छा एक करके बैठ जा, एक मिनट बोल तू भी बोल। अबे तू तने मम्मा खा छोड़ा मेरा, उठ जा। एक मिनट मुझे दे, आप झगड़ा करती जो भी करती, एक मिनट मुझे दे कि मैं माँ ये क्या आप लिहाज पे काने वडे निकेरा लिहाज ही नहीं गई। सना जी आपका बहुत बहुत पंजाबी शुक्रिया। बोलने लगी आप हमारे शो में आई, शो मेरा बहुत अच्छा गया। आप ना आती तो शायद इतना संजीदा गुफ्तगू मुझे मिलने को ना मिलती। शहरयार साहब, आपको तो मैं बुला के पछता रही हूँ, मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको बुला के, आपके बारे में सोचा कुछ और तो निकले कुछ और है। मेरे जो आपके लिए मेरे ये मेरा एक सोच थी आपके लिए, और वो इधर नीचे गिरा दी आपने, मतलब मुझे गलती। इस कदर क्यों हो मेहरबान? छोड़ दे। और आप बताएं, आप तो कह रही थी कि आप इनको समझती नहीं है, आप बड़ी नखरे मार दिए कि इस टाइम की लगी हुई है आंटी कहीं की, फूफो कहीं की, नौ मोहल्ले में लड़ाइयां कराने वाली है। चुवी आपने देखा ही पैड़ी बुढ़ी मां पे लाग दी पई है। इतनी बदतमीज आंटी मुंह पकड़े, लटका मुंह पकड़े तो दुए पे के लगी है बोली जानी है। इंग्लिश बोलने आंदी नहीं, टीचर बैठ गई थे आवाज निकल आई। आप चुप करें जरा, आप चुप करें, चुप कर ना करे यार, किसी जगह पे फोन पे आप आप जिससे खुदाफिज करें, तू चुप कर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मौका मिल जाएगा खुदाफिज करने का, क्योंकि उधर शायर साहब बीच में फंस गए और शो कुछ और निकलने वाले। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको जो है तो खुश रखे। कल सुनिए मेरी जी भी, ये क्या हो रहा है? चले सर हम लोग चले जाते, पता नहीं कहाँ से जा जा निकल गला करने लगी।